ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾ ਸ਼ਫੀਕਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਈਆ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਈਏ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਫੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਈਆ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ इशाइया का इतमाम किया काफ लीग की नायब सदर जाफरी कलंदरी शेदादा वालेकुम पाकिस्तान। तमाम दोस्त जरा खामोश हो जान। जाफरी कलंदरी साहब जरा को गुफ्तगू करना चाहते हैं नदीम साहब के कहने के मुताबिक। असल में ये है जी कि सबसे पहली तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी बहन ने जो इतना खूबसूरत एहतमाम किया है, हम सबको वेलकम किया है और सबको इकट्ठा किया। सबसे अच्छी बात, जो बड़ी बात है, जो बिछड़े हुए थे उनको भी इकट्ठा कर दिया। और यहाँ पे जो उनका मकसद है सबको इकट्ठा करने का, बेसिकली मोहतरमा ज़हदा शफीक साहबा जो हैं वो सीनियर नायब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। और यहाँ पे मौजूद जो एक अहम तरीन शख्सियत जनाब मोहतरम नदीम पहलवान साहब, जिनकी ऑनर में आज की ये तकरीब जो है मुनक़िद की गई है, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर सनत व तिजारत और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, यहाँ मौजूद है। और तमाम जितने भी मेम्बरान हैं, मेल फीमेल, आप तमाम को मोहतरमा ज़हदा शफीक साहबा की तरफ से, और आज चूँकि मैं होस्टिंग कर रहा हूँ ताहिर अली जाफरी कलंदरी की तरफ से, सबको खुशआमदीद वेलकम जी आया हूँ। आप ऐसा करें, अपने लिए, अपने चेहरे के ऊपर रौनक लगाने के लिए, थोड़ा खुश होने के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और इस इकट्ठ के लिए एक भरपूर ताली बजा दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शिजाह हुसैन, वो पुरानी महादारी कोई नहीं बोल रहा। नदीम पहलवान सैयद बादशाह। और दूसरा जो है वो ये है, असल में
کہ جو یہاں پر بلانے کا ہے جو مقصد ہے تو ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے، آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے جو اپاہج لوگ ہیں، کچھ بیمار لوگ ہیں، ان کا آپ لوگوں نے علاج کروایا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نصیبوں والوں کو یہ خدمات حاصل ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ رب کائنات جس کو یہ انعام بخش دیتا ہے ان سے وہ خدمت دے لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس کے اندر جیسے کہ ندیم پہلوان صاحب نے، بہت سارے ایسے فنکار ہیں جن کو جو ہے ان کا علاج معالجہ کروایا اور وہ مستفید ہوئے۔ ابھی بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ان لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کو جو ہے ان کا حق دیا جائے۔ آرٹسٹ کے حوالے سے جو ہے میں الحمدللہ جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان مسلم لیگ میں بطور چیف آرگنائزر رہا ہوں۔ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں تو زندگی میں دو چار کہنے والا بندہ ہوں، نہ کبھی منافقت کرتا ہوں نہ کسی کی منافقت سنتا ہوں۔ آپ کو میں نے سب سے بڑا عہدہ اس لیے دیا تھا، آپ اس قابل ہیں۔ اگر آپ بھاگیں گے تو سب ابھی بتا دیں جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو خوشی سے آٹھ ڈال دوں گا غریب میں، پھر آپ نے بھی یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی بات کو میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ واپسی ندیم صاحب نے کر دی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے پتہ ہے میری ذات سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ لوگ، اور میں ایک ہوں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں پاکستان مسلم لیگ میں بطور چیف آرگنائزر ہوں اور رہوں گا۔ یہ ندیم صاحب پروگرام والے کے خصوصی طور پہ مجھے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کی پیٹھ کو دیکھتا ہو۔ ایک لمحے میں بھی جو ہے نا انہوں نے مجھے جو ہے نا مطلب میں نہیں آیا، مجھے پوچھا کال کر کے کہ طاہر بھی کیا کیوں نہیں، لیکن میں ندیم بھائی کو میں نے بدلا کہا تھا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ میں بات میں کہوں، لیکن چلے میں نے دعا لینے کے لیے یہ چند لفظ کہنے ہیں۔ محترمہ فوزیہ جی کہ میں نے 2-3 کام اکٹھے شروع کر دیے الحمدللہ، پراپرٹی کے حوالے سے، کیٹرنگ کے حوالے سے، اور یہ رینٹ کار وغیرہ اس طرح کا سلسلہ۔ سو میں اس میں بزی ہو گیا، میں یقینی طور پہ میں نے خود ایک میسج بھی کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اوپر زیادہ تو نہیں ہے، اصل میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہن، مجھے میں آج آپ سب کو پہلی دفعہ شاید بتا رہا ہوں، کافی لوگوں کو نہیں ہے کہ میڈم زادہ شریف جو ہے نا وہ میری عزیز بھی ہیں، میری چچی ہے گجرات میں، تو وہ آپس میں ایک قسم سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں خصوصی طور پہ ندیم پہلوان صاحب جو کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں تو ہمیشہ اپریشیٹ ایسا کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر یہ شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں میں واقعی بہت اثر ہے، اور مسلم لیگ ہاؤس میں جب سے یہ دعا شروع کی ہے تو ماشاءاللہ باقی معاملات کی آسانیاں پیدا ہونے شروع۔ باقی تمام جتنے خواتین و حضرات شامل ہوتے ہیں، اس سے واقعی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ مسلم لیگ جیسے ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ گلدستہ ہے، حقیقت میں آج یہ گلدستہ ہی نظر آ رہا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، جعفری صاحب کے بارے میں میرے بھائی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انسان ہے، اور ہمارے باقی اسٹیج کے پروگرام جو ہے نا اکٹھے ہیں، اور آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے ندیم صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ۔
थैंक यू जनाब बहुत। बहुत रात का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी बहन हमारी आपा ज़ाहिदा शफीक साहबा की कल सब में की आमद हुई है और अल्लाह ताला इनके इस काम को जिसमें बरकत आ दे और मज़ीद जो है ये अपने इलाके की आवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार इनका साबित हो और इस दुआ के साथ जो है ना नदीम साहब ने कहा है कि मेरी थोड़ी सी स्टार्टिंग स्पीकर बंद हो गया। चलो जुबानी बोल दो। चलो जुबानी कर लेते हैं। जी नदीम साहब की बहुत सारी स्टार्टिंग उसमें शामिल होती है और वो एक कोमा भी रह जाए तो मुझे पकड़ लेते हैं कि ये कोमा नहीं डाला आपने। तो दूसरा मैं बाजी ज़ादा को उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको इकट्ठे किया और हमें उनका जाबरी साहब जैसे दरीना दोस्त बड़े दिनों से जो नजर नहीं आ रहे थे उनको मिलने का मौका मिला। और मैं इस मौके पर मैडम फौजिया तबस्सुम साहबा को आज उनकी बर्थडे है उस पर उनको मुबारकबाद करता हूँ और चौधरी शाफिर साहब को भी मुबारकबाद करता हूँ। और ये जो गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है इसमें नदीम साहब का मेन किरदार है और वो जो हर बंदे का ख्याल रखते हैं और ये उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम छोड़ा जैसे वो वज़ीर आज़म बने और उनको पता है कि ये वो खानदान है जो लोगों की इज्जत करनी जानता है और चौधरी शहबान के साथ वो इस तरह जुड़े हैं कि बहुत बड़े बड़े खानदान अपना जोर लगा के बैठ गए हैं लेकिन उन्होंने अल्लाह के फजल से नदीम साहब का चॉइस सबसे आगे रखा है। और मैं ये अहले इलाका को भी कहता हूँ कि हमारी पार्टी वो है जो लोगों की इज्जत करना जानती है और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करती है और हमें इस पार्टी में आके बहुत इज्जत मिली है। और मैं इसके साथ ही शाह साहब के और आपके दरमियान में बोखल नहीं होऊंगा तो मैं ये माइक उनको देता हूँ। मिनिस्टर ओवरसीज पंजाब आपके मुस्लिम लीग हाउस में आए हुए थे। आप सोचें कि ये आप सब दोस्तों की कितनी बड़ी इज्जत और ब्लेसिंग है कि नून लीग का ओवरसीज का वाइस चेयरमैन और ओवरसीज का मिनिस्टर आज आपके मुस्लिम लीग हाउस में आपके साथ शाना बशाना बैठा हुआ था। इसका ये मतलब है कि ये सब आप सब की वजह से अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे इज्जत और चौधरियों ने वो मुकाम दिया हुआ है कि जिसको लोग अपनी आंखों से देखने आ गए कि यार मुझे आज तो पता क्या कह के गए हैं जाते जाते कहने भलवान जी असी मियाँ नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के दौर सिखाओ सी चाहे रौनक देखी हैं तो तुसी कल्ले आ गए थे काम आदत है कितना की तो आज वो मिनिस्टर साहब मुझे जुमेरात वाले दिन की दावत देकर गए हैं कि आप GOR में सारी अपनी टीम का डेलीगेशन लेकर आए और आपको मैं खुद वेलकम करूंगा GOR 1 में। तो इंशाल्लाह ताला मैं कल फाइनल हो जाएगा जो टाइम मैं कल ग्रुप में मैसेज करूंगा हमारा पूरा डेलीगेशन इंशाल्लाह जाएगा क्योंकि मैं कभी भी कहीं अकेले नहीं जाता आप सबको पता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारे मेरे फूल मिलेंगे तो गुलदस्ता तैयार होगा तो मैं तब जाऊँगा। कई मेरे दोस्त इस चीज़ पे सोचते हैं कि यार मैं पीछे रह गया हूँ या मैं इधर मैं सबको कहीं ना कहीं जो भी छुपा होता है उसको पकड़ के आगे ले आता हूँ इधर आओ इधर चलो। ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर चीज़ इसलिए डाली हुई है कि मैं खानदानी माँ बाप को भी बुला लूँ। जो खानदानी इंसान होता है ना वो ही किसी को इज्जत दे सकता है। बेनस्ला और बेहया आदमी कभी किसी को ना इज्जत दे सकता है ना उसकी अपनी इज्जत होती है। जैसे कि मैं नाम ही लूँगा आप सबको पता ही है जो बेनस्ला इंसान है अकेले टकरे मार रहे हैं दीवारों में वो अकेला ही अपनी मौत मर जाता है। इसीलिए बादशाह की जो मोहब्बत है ना इन्होंने दुनिया के हर खिते में वो नारे बजाए हैं। तो ये हमारी पार्टी के नारा हैदरी मशहूर है। अभी जो हमने कबड्डी का मैच करवाया
की टीम में, उधर भी भट्ट साहब ने वो भंगड़े डाले हैं कबड्डी के मैच में भी। शाफे साहब की हमने वहाँ पे बर्थडे की तमाम पाकिस्तान के कबड्डी के पहलवानों के साथ, और हज़ारों लोग थे वहाँ पे हमने केक काटा। मुस्लिम लीग हाउस में अभी केक काट के आ रहे हैं, चौधरी शाफे साहब का भी और मैडम फौजिया का भी। अब इधर भी हम केक काटेंगे, मैडम ज़्यादा ने चौधरी शाफे साहब का इधर भी केक मंगाया हुआ है, इधर भी काटेंगे। मैडम फौजिया के भी इधर फिर बर्थडे करेंगे। मेरी ये खुशी होती है, मेरी पार्टी के किसी भी बंदे का कोई खुशी का मौका हो, मैं वो रायगा नहीं जाने देता। मेरी अल्लाह के हुक्म से सबके साथ इस तरह की प्यार की अटैचमेंट हो चुकी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आगे वक्त आएगा ना जब इलेक्शन का, तो ये सारे हम जब एक दूसरे की बाजू बन के एक दूसरे के हल्के में जाएंगे तो लोग मसाले देंगे कि यार अगर चंद लोग भी हैं तो ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं एक हलचल मच जाती है। तो मैं आज ना मैडम ज़्यादा को कहूँगा मैं करीब आ जाए, किधर गई हैं मेरी नज़रों से आगे पीछे हो गई हैं। मैडम जी इधर हमारी सीनियर नायब सदर लाहौर की तो है ही हैं कल्चर की, लेकिन आज इनकी ये जो यूनियन कौंसिल है इसका भी आज हम इनको प्रेसिडेंट नामजद कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, अपनी मदर पार्टी की तरफ से यहाँ की प्रेसिडेंट मैडम ज़्यादा होंगी और यहाँ के हल्के की टिकटें भी यही फैसला करेंगी और ये खुद भी इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह। और मैं चाहूँगा मैडम ज़्यादा आपको कोई दो अल्फाज कहेंगे, जिसको आप स्पीच करवाना चाहती हैं उसको भी आप माइक दें। मैडम जी साथ खड़े हो जाओ, मैडम जी नाल खड़े हो जाओ, सामने सामने इधर सामने। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, साढ़े वाल रिजवान गार्डन वेलफेयर सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये इनका बेहद मशहूर हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे जो है ना काफ़ी बुलवाने की जो है खसूसी कावश है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम पहलवान साहब मुझे पहले भी जानते हैं, लेकिन उनको मुझे जो है थोड़ा तारीफ करवाना पड़ेगा ना, वो मेरे प्यारे भाई है, बहुत शुक्रिया। और ये रहना जो हमारी बहन है, हमारी रिहायशी है इधर, हम एक वेलफेयर सोसाइटी चला रहे हैं, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी बहन हमारे साथ बहुत ताउन करती है। मैं सब दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने उन्हें खिदमत लाए और हमें खिदमत का गलती है। साढ़े इलाके सब आए ने, इन्हों का असी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, साढ़े इलाके ने अपना टाइम दिता सानू, असी इन्होंने बहुत सारे शुक्रगुजार हाँ। बाकी रह गई सियासत की गल, फिर साहब असी अलहमदुलिल्लाह नून लीग के पुराने फिर साहब की चलो घर की शायद पैदा होए ना दो भरावां के पुराने, असी इन्हों के मेहरबान हैं। असी जाती तौर पर काफी को इलेक्शन लड़े हैं, शफकत भट्ट भाई है ना साढ़े इलाके की सियासत क्योंकि साथ साथ इलेक्शन लड़े तो सैकंड निशान थी। अज का साढ़ा इन्होंने तलक नहीं मोटरसाइकिल के वक्त हो क्योंकि साहब बने अलहमदुलिल्लाह असी काफी सारी कोशिशें इस इलाके में आज के ब्याज के वक्त हो क्योंकि जाल के वक्त हो प्रभाव के वक्त जिस तरह मामला चलते हैं उसमें जब करना कहे हर बंदे उठा के बने असी कड़े मशहूर हैं सब दोस्तों ने साढ़े तुम घर आए साढ़े इलाके च आए साढ़े यूसी ने जान के तुम सारी हौसला अफजाई की असी सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। मियाँ मीर पिंड दे मेरा बाबा 7 नंबर 7 पिंडा का नंबर था, चौधरी इशफाक करीम मेरा नाम है, तो बहुत सारी बात है बड़ी शौक है रहना। तो ये मेरी मामी भी ने दादा साहब मेरी साली भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ी खुशी हुई ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ तशरीफ ले आए, सारिया बाजियां तशरीफ लिया तो टिकटॉक से वेखदा रहना मैं उर्दू जायज़ को नहीं बोल रहा कि असी खाना सिंह की औलाद हाँ तो पंजाबी ठीक असी बोल रहे हैं। तो तुहाडा सारियां का बड़ा शुक्रिया, तुसीं इत्थे तशरीफ ले आए तो इस घर में 4 चंद लगाए।
بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آج ہمارے یہاں پہ جو مہمان آئے ہیں جو مہمان آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنے ٹائم میں سے لگا کے اور میرے پاس آئے ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. چودھری شجاعت صاحب, چودھری شافی صاحب, چودھری فاروق صاحب اور جنرل سیکرٹری ندیم مہمان صاحب, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ عہدہ دیا اور میں اس عہدے کی راہ رکھی ہوئی ہوں. اور انشاءاللہ جو جیسے بھی ہوگا ان کے ساتھ چلیں گے, ان کا ساتھ نبھائیں گے اور انشاءاللہ ہماری پارٹی اونچی ہوگی. انشاءاللہ ہماری پارٹی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے. ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی پارٹی ہے, بانی پاکستان کی پارٹی ہے. اس کو ہم لیں گے, اونچا کریں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور آج ہماری بہن فوزیہ کی برتھ ڈے ہے, ان کو مبارکباد کرتی ہوں. چودھری شافی صاحب کی برتھ ڈے ہے, ان کو بھی مبارکباد کرتی ہوں. اور ہمارے سارے عہدیدار اور ہماری بہنیں بھائی جو بھی موجود ہیں سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. میرے گھر میں پڑے انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. دیکھیں جی, میڈم زاہدہ کے اسپیچ نے آج زبردست الفاظ اور بڑے کمال الفاظ بولے ہیں انہوں نے. تو میں چاہوں گا خواتین میں کوئی اور اسپیچ کرنا چاہے. مس ماہا کو میں کہوں گا جو ہماری جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ لاہور کی, وہ بھی بات کریں. السلام علیکم. میرے سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت سلام. اور آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے, کیونکہ ہماری جو زاہدہ ہے, ہماری پیاری دوست, ان کی عادت تو بہت پیاری ہے. اور آج جو مجھے پتہ لگا کہ ہمارے مسلم لیگ ہاؤس کا جو ہے آفس آج یہاں پہ کھلا ہے, تو میرے لیے خوشی کی امتحان نہیں تھی. اور میں مبارکباد دینا چاہوں گی ان کو, اور ندیم صاحب کا شکر گزار ہوں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب گلدستہ ہیں اور گلدستے کی طرح ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے جب پالیٹکس جوائن کی تو میں ندیم صاحب کی لیڈرشپ میں ہوں, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. جیسے یہ سب کو اکٹھا رکھتے ہیں, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اکٹھا رکھتے ہیں. اور ان کی وجہ سے مجھے میرے بھائی شاہ صاحب جو کہ میرے مرشد بھی ہیں, مجھے یہ ملے. اور اس کی میری لائف میں آنے کے بعد میں یہ فیل کریں کہ نمازی تو تھی, میں تہجد گزار بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ اتنا بہتر گائیڈ کرتے ہیں مجھے, جب کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ سب ندیم صاحب کی وجہ سے ہے, جن کی وجہ سے میں ملی. تو میں ان کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی اور ان کو بیسٹ آف لک کہوں گی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور مس فوزیہ کو بہت سی ہیپی برتھ ڈے, اور جو کہ شافی حسین کو بھی بہت بہت سالگرہ کی مبارک ہو میری طرف سے. تھینک یو. گھر میں چاہے ایک فلیکس لگائیں, جو نہیں بنوا سکتا مجھے بتائیں, میں بنوا کے بھجواتا ہوں. کیا بات. اپنی لیڈرشپ کی تصویر لگائیں اور اپنے گھر میں چاہے ایک فلیکس لگا کے 1.5 روپے کا فیتا منگائیں. میں اکیلا آگے فیتا کاٹ کے چلا جاؤں گا. اگر سب کو بلانا چاہیں گے آپ تو سارے آئیں گے. میں کسی کے اوپر نہ زندگی میں بوجھ ڈالوں گا نہ ڈالتا ہوں. میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کمفرٹ کیسے ہیں آپ. جیسے بھی جعفری صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے ایک دن کال کر کے کہی ندیم صاحب آپ ہمارے بھائی لیڈر سب کچھ ایسے دبنگ ہیں, میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا لائف میں, لیکن میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا ہوں. آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں آپ سے دور ہوں. آپ مجھے آدھی رات کو جب آواز دیں گے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. تو اسی طرح میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بسیں بھر کے لائیں. جیسے مس گل اس دن ایک دن کے نوٹس پہ پوری بس بھر کے لائیں گے پوری بہنیں. تو مقصد یہ ہے کہ میں نے پھر ان کو جب دیکھیں لیڈیز ہو کے
इतनी ताकतवर हमारी शेरनियाँ हैं, हम बंदों को भी चाहिए। हम माशाल्लाह सारे वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपनी जगह के टाइप कौन है। आज अगर शेरनियों ने पाँव आगे बढ़ा लिया तो हमारे शेरों को भी ख्याल करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शेरनियों की तरफ से खुद बोलूँ। हमारे सारे माशाल्लाह नहीं तो आधे अहदेदार आज लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं। कई हमारे ऐसे भी अहदेदार हैं जो दिन रात इतना काम कर रहे हैं कि मुझसे भी शायद ज़्यादा कर रहे हैं। और कई ऐसे हैं कि जो ओहदा लेके ना उसको कागज़ का टुकड़ा समझ के घर रख के सो गए होंगे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब मेरे दाएं बाएं आँख हैं, मेरे बाजू हैं। तो मैं चाहता हूँ, किसी को ये नहीं कहता कि कोई मुझ पर कोई लाखों रुपए या हज़ारों रुपए खर्च करो। मैंने आज ओपन कह दिया है, जो मुझे खामोशी से भी कहेगा ना मुझे फ्लैक्स बनवा के दे दो, 24 घंटे में बनवा के उसके घर में खुद भिजवाऊँगा, कभी बताऊँगा भी नहीं। क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने दोस्तों का, साथियों का सीने में राज रखना जानता हो। अगर मेरे कायद चौधरियों ने मुझ पर इतनी बड़ी इज्जत और इतना मुकाम, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, कोऑर्डिनेटर, क्या क्या कुछ, कसम से मुझे वो अक्सर कहते हैं पहलवान साहब आप बताएं आपको क्या बना दे। मैं कहा यार मैं सब कुछ ही हूँ। जो भी मुझे देखते हैं वो कहते हैं चौधरी शाफे हैं आप, चौधरी सालक हैं आप, चौधरी शुजात हैं आप। तो मुझे खुशी होती है। मैं कहता हूँ यार सब पौधे बांटो, मुझे पौधों से कोई प्यार नहीं। अगर मुझे पौधों से प्यार होता ना तो अवाम साहब वाली बात, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तो मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ। कोई एक इलाके के काउंसलर से नहीं बगाड़ता, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके खिलाफ बात भी कभी की ना करूँगा। लेकिन जब आप देखें कि नदीम पहलवान आपकी इज्जत का यहाँ आपके साथ शाना बशाना चलने के काबिल नहीं, आप मुझे लानत डाल के आगे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी। हमेशा उसको प्यार करें, उसको इज्जत दें जो इस काबिल हो। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से ना कभी किसी को कभी कोई प्रेशर हुआ है, ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई हुई हो तो मैं माजरत भी चाहता हूँ और माइक साहब से कह रहा हूँ। देखे ना हमारी मुंदरियों वाली सरकार इधर बैठी हुई है, आते हैं मुस्लिम लीग हाउस में शर्त कर देते हैं, हम सब लोगों को बुला बुला के मुंदरियाँ दिलाते हैं। ये कितना प्यार है उनका। जब मुझे खुशी होती है तो मैं उनको कहता हूँ, मुझे वो पिछले दिनों कह रहे थे पहलवान जी मैंने ना तुसी ओवरसीज का कोई होता दे दो, मुंदरियाँ की सरकार खड़े हो जाओ। आज देखो ओवरसीज का मिनिस्टर बैठा मुझे आगे बाहर है जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, नदीम पहलवान आपका भाई वो ब्रांड है, आप सबको पता है। आप किसी मिनिस्टर, किसी ओहदेदार, किसी अफसर का मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह 24 घंटे नहीं तो 72 घंटे में मैं जरूर उसको ढूंढ के आपको जाके जहाँ जिसको गेम बैठा दूंगा अल्लाह की रहमत से। और काम होना ना होना अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, लेकिन जो मेरी इज्जत, मेरा मुकाम, मेरा तल्लक है, आप सब ने देखा हुआ है कि कोई पार्टी का, कोई गवर्नर, कोई अल्लाह के हुक्म से बंदा ऐसा नहीं है कि जो मुझसे एक्सेस में दूर हो। जिसको जब चाहता हूँ मैं जाके मिल लेता हूँ। मेरे लिए सब ने अपने दरवाजे दिलों दिमाग के खोले हुए हैं, इसलिए कि सबको पता है कि नदीम पहलवान एक दिहाड़ी बात नहीं गा, किसी की फोटो लुहान जाएगा तो दिहाड़ी ला के नहीं आएगा। नदीम पहलवान वो बंदा है कि जरा दिलों भी हो गई है तो बाहरों भी हो गई है। तो अल्लाह की रहमत ऐसे भी लोग मैं कहते नहीं पहलवान जी तुसी तो बढ़िया जायदादां ते बढ़िया चीज़ां बनाइयां होनियां। मैं आज सारे कहना चाहना जी जायदादां ते दौलत अल्लाह ने मैनू आजी है ना, सारे अमीर आदमी उस चीज़ों तो महरूम ने अल्लाह दे हुक्म।
क्योंकि अमीर आदमी को पैसा जायदाद दौलत बहुत कुछ होएगा, ये फुल नहीं होंगे। एक मैसेज तो एक आवाज से सारे खड़े हो गए नाले अल्लाह पाक की रहमत है। देखो ना ऐसे ऐसे सैयद जेने कभी घरों नहीं से निकले, अक्सर शाह जी लोगों ने यही कहते हैं कि यार मैं ऐसा छुपिया सा कि मैनू भलवान जी ने जिथे कहना होंगे मैं कभी नहीं पूछा थे की है की नहीं, मैं अखा बंद करके चला जाना। लोग शादी बन कहते हैं, मैं लोग मैसेज करते हैं कि भलवान जी जिथे कहते हैं अभी उत्थे पहुंचे होंगे अभी भला हल्ला थक जाते हैं। सारिया प्यार दियाँ तो दिल दियाँ मुहब्बत ने, क्योंकि शाह जी भी पता है कि नदीम भलवान बन जाके किधर बेचेगा नहीं, मेरा किधर सौदा नहीं करेगा। ये सारिया प्यार मुहब्बत दियाँ गल्लां होंदियां। मैं जिन्हें जोगा गां सब नहीं मारदा। देखो मैं ज्यादा खुश नसीब है कि आज सैयद बादल इन्हां दे घर चल के आए। बेशक जी। देखो सारे नासर साहब जेडे सदर ने कितने ने नासर साहब करे हो जरा नुकरे लगे हो। अच्छा नासर साहब की बेटी की शादी थी, इन्होंने मैंने इनवाइट किया, गवर्नर साहब गिलगित बल्तिस्तान लाहौर आए सन, मैं उन्होंने लैके शादी ते गया कि उन्होंने नहीं साड़ी बेटी है, जे असीं एक दूसरे को सजावांगे नहीं तो लानत है साडे तल्लकातां दे ते साडे ते। ए हुंदे ने तल्लक, ए हुंदे ने रिश्ते। नदीम पग्गां दे घर लैके गया गवर्नर साहब नूं, उत्थे जाके लंगर करवाया, बैठे इन्होंने अपने पूरे इलाके में बुलाया। वो कि इज्जत हुई है नदीम भलवान की, नदीम पग्गा ने दी एक इज्जत है। इश्तहार मान साहब का घर रहने का मकसद कि मैं कभी ये चीज़ा नहीं सोचता कि अल्लाह ने जो मैंने कोई चीज़ कोई शहर नवाजी है तो मैं वो बड़ा कला मालक हाँ। मैं कहना मैं सारे बड़े मालक हूँ। मैं शाकिर साहब हूँ। वो जो है उसमें तकरीबन 54 लाख के करीब जो है ना PKLI जो है वहाँ पे उनका किडनी का इशू था, लेकिन ये है कि लास्ट जो उन्होंने उनको बताया जी कि आपका जो है 24 तक जो है तकरीबन होगा, लेकिन अल्लाह पाक की ये मेहरबानी रही कि खसूसी तौर पे वो जो नदीम भाई ने उनके ज़िम्मे लगाया, नाम हाफिज़ तारिक साहब अभी यहाँ पर बैठे थे, मेरे ख्याल में नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। तो मारे के कायनात ना हर एक का वसीला बनाया हुआ है, पुराने पाक में भी है कि तुम पहले वसीला तलाश करो। तो जब इंसान वसीला तलाश करता है तो तलाश करने से पहले उसने भेज दिया होता है। सो मालिक के कायनात ये इस एक ऐसा माहौल दे दिया है कि अब आप कोई ये ना सोचे कि मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ ज्यादती करके आराम से सो जाएगा, तो मेरी कोई रिश्तेदार मेरे साथ ज्यादती करके सो जाएगी, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे अल्लाह के ऊपर। मैं ये बातें इसलिए आज खुल के ये कर रहा हूँ, हालांकि आपको पता मैं इतनी तकरीरें नहीं करता। जब हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे की काउंसलिंग नहीं करेंगे ना तो फिर कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सब एक दूसरे को जानते हैं, जो नहीं भी जानता तो अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता वो भी सब एक दूसरे को जान गए हैं। तो मैं अब बातें तो बहुत हैं करने की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भूख बहुत लगी होनी है कई ना मेरी गलना जिना भूख लंबी हो जाए। तो अब हमारे फनकार बरादरी भी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा वो भी अगर अच्छा नहीं वो मसल की कोई है, ये आप सबकी मोहब्बत है और मोहब्बत की तफसीर में आप सबको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये नींद से ते तक जो बनता है सफर देखें। मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ करते हैं। मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है, इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में। हुसैन इब्ने अली ने राज़े हक पाया मोहब्बत में।
محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے، یہ علم و معرفت سب کچھ شاہ اولاد کے صدقے، محبت میں محبت سے یہ تے تطہیر لایا ہے، محبت کی یہاں شاکر یہی تفسیر لایا ہے۔ بہت شکریہ۔ انہوں رہن دو لو جناب، پیار تو بعد کوئی دان نہیں ہوتا، دان کبھی نقصان نہیں ہوتا، جیڑا دل دے اندر وسدا ہے وہ مالک مہمان نہیں ہوتا، جیڑا کرے عبادت رب دی وہ بھی کوئی نادان نہیں ہوتا، پر جنی بھی کو کرے عبادت رب دے کوئی آسان نہیں ہوتا۔ رب سونے آئین بنایا ہے، قسمہ لئی قرآن نہیں ہوتا، تے فضل خدا دا جینا ہوئے بار غمان دا جان نہیں ہوتا، ملک جو پر ہے آزادی دا وہ بھی یاد بنان نہیں ہوتا، ملک بڑے نے دنیا دے تک ہر ایک پاکستان نہیں ہوتا، سارے پتر سارے ہوتے ہیں، ہر پتہ دے پان نہیں ہوتا، سارے پتر سارے ہوتے ہیں، ہر پتہ دے پان نہیں ہوتا، دردے آئے حق داروں خالی ہاتھ پرتان نہیں ہوتا، پر نیت دا جو پوکھا ہوئے انہوں کبھی رجان نہیں ہوتا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لے کوئی باج نصیباں کھان نہیں ہوتا، رازق روزی اتھوں دینا ہے جتھوں وہم گمان نہیں ہوتا، لکھ پروان نے دنیا دے پر کوئی ندیم پروان نہیں ہوتا، کرسے وچ کے قابو ہو جائے وہ بھی کوئی پروان نہیں ہوتا، پاک نبی کے دشمن دائی جگ تے نام نشان نہیں ہوتا، بندے لاکھ کروڑا شاکر ہر بندہ انسان نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ انسان جیسا بھی ہو، جب وہ اٹیک ہو جاتا ہے نا سادات کے گھرانے سے تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سید کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کا ادب احترام آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، چونکہ آل نبی اولاد علی سے ہر کوئی نہیں ہو سکتا، جو ہوتا ہے اس کا احترام کیا کریں۔ آپ سب آسان ہو رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کیونکہ تلاوت کلام پاک ہوئی ہے تو ایک شعر نعت کا جو ہے میں آپ کے نظر کر رہا ہوں، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ خیر و برکت کے لیے، اس گھر کے لیے، ان زندگیوں کے لیے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم غریبوں کو مدینے، ہم غریبوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم غریبوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ بٹ سب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مولا ہمیں خانہ کعبہ میں بلا، جب پہنچتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دور تھے تو زندگی میرا
उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम गरीबों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जी बिस्मिल्लाह। जी अभी ज़रा नमाज इधर पढ़ लें, तो उसके बाद हम शाह जी से दुआ कराते हैं, सारे उतनी देर नमाज पढ़ के भी आ जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इख्तिताम। ज़ाहिदा शफीका साहब जो कि प्रेसिडेंट है काफी फरमाया मेरे बच्चे जन्नत के सरदार, मैं सैयदुल अंबिया, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, अली मेरे भाई हैं। अब सहाबी भी वो होगा जो पैंतन पाक का होगा, जो अहले बैत का होगा, मुस्लिम भी वही होगा, अमन भी वही होगा जो पैंतन पाक का होगा। इसलिए इनको, मेरे कुरान को, मेरी अहले बैत को नहीं छोड़ना, बाकी जो तुम्हें जहां जाना है जाओ, इनकी संगत लिए रखना, तुम बच जाओ। तो ये पॉइंट है, ये उनके मुरीद हैं, तो जब उनके मुरीद हो तो फिर सारा कमाल हो जाता है। आज जैसे हमारी बड़ी बहन जो ये ज़ाहरा शफीक साहबा की घर में आप सब एक गुलदस्ते की नजर हुए हुए हैं, ऊपर साया मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। आप मुस्लिम लीग काफ में ये तवज्जो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पीरों का फैज है, पैंतन पाक का फैज है। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई अपनी आंख को, अब कोई नहीं देख रहा, वो खुद को देख रहा है। सैयदों के साए के नीचे हम बैठे हैं, हमारे घरों की बहनें बेटियां ये बैठी हैं, सबकी इज्जत भी महफूज है। इसको अकलियत कहते हैं। जो पंचतनी हो वो अकलियत में है, उसके लिए कोई मजहब फिरका कोई बात नहीं रखता। जो आएगा वो कहेगा टेस्ट मीठा है। ये नहीं कि कोई बाहर से कोई और आ जाए, कोई यहूदियत में आ जाए, कोई अंसारी आ जाए, कोई पारसी आ जाए। इधर तो फिरकों फिरकों कोई नहीं ना मानता, लेकिन जो मुसलमान है उसको सब मानते हैं। तो यही पॉइंट है। जैसे दादा साहब आप लोग जाते हैं, मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेटने लगा हूँ। अब इससे पहले जो है, मैं आज तो तकरीर के मूड में भी नहीं था। ये अब मुझे क्या पता है शफीक भट्ट साहब को प्रॉब्लम क्या है, कि वो ले आए हैं कि मेरे दोस्त हैं तो इनका वो फिर खुद ब खुद निजाम बन गया। ठीक है, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। हर वेले आका मौला तेरी मर्जी। सुभान अल्लाह। पर कदे कदे आंखों दा दीदार, कदे कदे आंखों मिलाद होना चाहिए, कदे कदे आका दा दीदार होना चाहिए। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार, कदे कदे भी
ना सही मौला तेरी मर्जी, पर मरण वेले आका दा दीदार होना चाहिदा, मरण वेले आका दा दीदार होना चाहिदा। ओ कोई ते हयाती दा मेयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। इको ही हयाती दा मेयार, इको ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा, नबी दे गुलामां च शुमार होना चाहिदा। यही बात है सारी कि जब आप असल दीन को छू लेंगे ना तो फिर आपके अंदर से एक नूर निकलेगा और उस नूर से जो है पग्गा वाली सरकार बन जाएंगे, तारक मिठू साहब बन जाएंगे। उस नूर से चमक दमक हो जाएगी, कभी किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी, किसी को पास बैठ के ये नहीं लगेगा मैं छोटा हूं, वो सब कहेंगे हम तो एक हैं, हम तो एक हैं। तो ये लीगें ऐसी नहीं होती, ये सियासत ऐसे नहीं होती, ये सियासत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली है, ये सियासत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली है, ये सियासत उस्मान बिन अफ़ान ज़ुन्नुरैन वाली है, ये सियासत पैंतर पाक वाली है। सियासत असल में इबादत है, सियासत असल में इबादत है और इबादत उसी कराने से मिली है। इसलिए इस तरफ तवज्जो रखनी है। मैं देखिए कि ऊपर ये नाम सैयद लिखा हुआ है, तो मैं फिर दर दर से गदाइयां कीतियां नहीं, मैं किसी भी रूप में आ जाऊं, दर दर से गदाइयां कीतियां नहीं, असा होड़ कमाइयां कीतियां नहीं, एक सोने तेरा ना सोना असा दम दम नाल बका छड़े वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ये यराना हमेशा कायम दायम रखे, सलामत रहे, आबाद रहे। खाना खाया जाए, खिलाया जा रहा है मेहमानों को। मैडम इधर जंगल में मंगल तेरे ही दम से किसने ये शोर मचाया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया, ओ जंगल में मंगल तेरे ही दम से किसने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। गजा मजा गजा मजा ही है ना, ये हम गजा मजा पी रहे हैं, गजा मजा। ठीक है, थोड़ी भी शक्ल आ रही, गजा मजा सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी तारीफ सुनी नहीं आपने? अखीर में गजा मजा था, जूस का लुत्फ उठाया गया। कुर्सी पा के साड़ी लगी भी सही होती है, गजा मजा तो हलवा हो गया पर साड़ी भैन ने क्या